Good morning, family. गुड मॉर्निंग प्रिय परिवार। It's joy to be again in the fellowship. और बड़े आनंद की बात है फिर से संगति में आना। Every word that we hear on Sunday or any weekdays or weekly meetings, it's for our encouragement. और जो भी वचन हम संडे मीटिंग में या सप्ताह की सभाओं में सुनते हैं वो हमारे प्रोत्साहन के लिए है। This word is for to uplift us, not to condemn us. और वो वचन जो है हमें उठाने के लिए, हम पर दोष लगाने के लिए नहीं। This word comes to us so we can see Christ in a better way. Our vision should be clear. और वो वचन हमें दिए जाता है ताकि हम मसीह को और अधिक देख सके और अधिक स्पष्ट रूप से जान सके। There are times in our life, there are anxieties, worries, burdens are there. और ऐसा समय हमारे जीवन में होता है जब चिंता होती है, जब डर हमारे जीवन में होता है। And because of that, our vision gets blurry. We cannot see Jesus clearly in those times. और उस समय में ऐसा होता है कि हमारी जो दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है और मसीह को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। And the word comes to us that we can see clearly in spite of the circumstances. और वो वचन हमारे पास आता है ताकि उन परिस्थितियों में भी हम स्पष्ट रूप से देख सके। We can see ourselves in the light of God. और प्रभु की उस ज्योति में हम अपने आप को देख सके। In recent days, in one of the weekly meetings we heard that और सप्ताह की एक सभा में हमने इस बात को सुना। we are often looking for listening for something new which we have not heard till date. और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया सुनना चाहते हैं जो अभी तक हमने नहीं सुना है। Some new messages that I want to listen. और कोई नया मैसेज मैं सुनना चाहता हूँ। And I was reflecting when I heard that, in one of the weekly meeting, I was reflecting on my own life. और मैं अपने स्वयं के जीवन पर इस बारे में सोच रहा था That I'm eager to listen to something new always. और मैं हमेशा आतुर रहता हूँ कुछ नया सुनने के लिए। I have my playlist ready in my life. I have my playlist of videos that I want to listen to, messages that I want to listen. और मेरे पास एक प्लेलिस्ट है उन वीडियोस की और मैसेजेस की जिन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। And I really saw that I'm in the race of listening something new. और मैंने देखा मानो मैं उस दौड़ में हूँ कुछ नया सुनने की। I try to see that I missed to listen to that video which was posted in the WhatsApp group, or this message, that conference message. और मैं देखता हूँ कि अरे मैंने तो वो मैसेज जो कॉन्फ्रेंस में था या व्हाट्सएप में डाला गया, मैंने उसे सुनना मिस कर दिया है। And this week God was impressing upon my heart this very strongly. और प्रभु इस बात को मेरे हृदय में बहुत डाल रहा था इस बात को that there is a need in my life going back again and listening to those words which I have heard again and again. कि मेरे जीवन में इस बात की जरूरत है कि जिन बातों को वचनों को मैंने सुना है मैं उनको फिर से सुनूं। In 2 Timothy 3:14 we read like this. और दूसरा तिमुथियुस 3:14 में इस प्रकार लिखा We है। read that 2 Timothy 3:14, you must be faithful and steady in all those things that you have already learned. पर तू उन बातों में जो तूने सीखी है और विश्वास किया है उन्हें जानकर उनमें दृढ़ बन जा। Today our need is not listening to something new sermon or something new, और आज हमारे जीवन में इस बात की जरूरत नहीं कि हम कोई नया समाचार सुने, but convinced of what God has already spoken to us. पर इस बात को जानना कि जो प्रभु ने हमसे पहले से ही हमसे बात की है। Examine my own life in the light of the messages that I've heard till date. और अब तक जो वचन सुने हैं मैंने उन वचनों की ज्योति में अपने आप को जांचना And repenting my own life by examining myself. और अपने आप को जांच कर मुझे पश्चाताप करना। Philippians 3:1 says, और फिलिपियो 3:1 में लिखा है, Paul reminds that there is no trouble for me to write the same thing again and again to you. और वो कहता है कि हे भाइयों वही बात को बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। And this is what it's for our encouragement that we should not be seeking something new always. और ये हमारे लिए भी है कि हम जो है बार बार कुछ नई चीजों के लिए ना देखें। It is good sometimes God gives us that new revelation. It is good for our edification. और हमारे एडिफिकेशन के लिए अच्छा है कि प्रभु हमें कुछ नया प्रकाशन दे। But because I want to increase my knowledge in my mind, I want to know something new. That is God doesn't want in our life. पर क्योंकि मुझे मेरा जो ज्ञान है बुद्धि में बढ़ाना है, इसलिए प्रभु मुझे कुछ नया नहीं देगा। So today we are not in need of a new sermon. और आज जो है हमें इस बात की जरूरत नहीं कि हमें कोई नया समाचार सुनने को मिले, But we are in need of a hungry and broken heart who can receive the word of God. पर आज हमें इस बात की जरूरत है कि हमारे पास वो भूखा और टूटा हुआ हृदय हो। Let's turn to 2 Corinthians 2:15. और आइए हम दूसरा कुरिन्थियों 2:15 को It says 2 Corinthians 2:15. दूसरा कुरिन्थियों 2:15 में It reads like this: For we are fragments of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. क्योंकि हम मसीह के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले
दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। You know, when I was reading this, it came to my mind that it says, we are the fragrance of Christ. और जैसे मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि हम मसीह की सुगंध है। The another NLT translation says that we are life-giving perfume. और एक अनुवाद में, एनएलटी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि हम जीवन देने वाला सुगंध है। Just consider when we buy any perfume, और सोच के देखिए, हम जब कोई परफ्यूम खरीदते we हैं always check, the fragrance, how good it is. और हम हमेशा उसकी सुगंध को जांचते हैं कि वो कैसी है। And in the Old Testament, when we see, we read how certain sacrifice were sweet aroma to God. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि कुछ जो बलिदान थे वो प्रभु के सामने एक सुगंध के रूप में थे। And in New Testament, we see that we are pleasing aroma to God. और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि हम जो है वो प्रभु को आनंद पहुंचाने वाला वो सुगंध है। When we sacrifice our life to God, जब हमारे जीवन को हम वो जब हम बलिदान करते हैं प्रभु के we लिए, become like a pleasing aroma. और हम जो है वो आनंद पहुंचाने वाला सुगंध बन जाते हैं। And that's not limited to that only. और ये केवल उस तक ही सीमित नहीं है। God wants us to make a fragrance of Christ to others. और प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए मसीह की वो सुगंध बन जाएं। Yes, God wants us that we become a fragrance of Christ to around us, our fellowship in our family. और हमारे परिवार में, हमारे आसपास प्रभु चाहता है कि हम वो मसीह की सुगंध बन जाएं। And I was reflecting on this word that we are fragrance of Christ. और मैं इस वचन पर मनन कर रहा था कि हम जो मसीह की सुगंध है। These perfumes often are kept in some container or a glass bottle. और जो परफ्यूम होता है उसे किसी ग्लास की बोतल में रखा जाता है। And one more verse I want to turn, 2 Corinthians 4:7. और दूसरा कुरिन्थियों 4:7 It says that we have this treasure in the jar of clay to show that this is all surpassing power of Christ and not from us. परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Let's read this carefully. It says the surpassing power that shines within us. It's like a treasure. और इस वचन में जैसे लिखा है कि प्रभु की जो असीम सामर्थ है मानो वो एक खजाने की तरह है। God wants to treasure something so precious. In what container he wants to treasure और वो that? जो असीम सामर्थ या खजाना है प्रभु उसको किस में रखना चाहता है? In jars of clay. और वो है मिट्टी के बर्तन। We all have seen jars of clay in our life. और हम सभी ने वो मिट्टी के बर्तन देखे We might हैं। be using in our home also. और हो सकता है हम हमारे घरों में भी उसका इस्तेमाल It करते is made of common clay. It is very, very fragile. It can be easily broken. और वो जो है वो कॉमन मिट्टी से बनाया जाता है और वो बहुत ही नाजुक होता है, वो आराम से टूट सकता है। If you drop it down, it will have crack or it might break brick. अगर आप उसको नीचे गिराएंगे तो वो आराम से टूट जाएगा या उसमें दरारें पड़ जाएंगी। Similar way, human being, we are so fragile in this world. और इसी तरह हम जो मनुष्य हैं वो भी इस संसार में बहुत ही नाजुक है, आराम से टूटने वाले हैं। God chose a weak, a fragile human being, to treasure that his power, his aroma in us. और प्रभु ने हम जैसे इंसानों को चुना है जो बहुत ही आसानी से टूट सकते हैं अपनी उस सुगंध को बनाए रखने के लिए। This broken jar has a greater purpose that God has. और ये जो टूटा हुआ बर्तन है उसका प्रभु के लिए बहुत अधिक महत्व है। ये Dear उद्देश्य brothers है। and sisters, God wants to treasure this aroma, this life of Christ in our life. और प्रभु जो है उस प्रभु की जो सुगंध है उस खजाने को हम में रखना चाहता है। He chose us for some purpose in our life. और प्रभु ने हमें किसी उद्देश्य के लिए चुना है। Word says that God chose the foolish who were weak and despised by the world. और वचन में लिखा है कि प्रभु ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया। Can you see the contrast here? क्या आप यहाँ विरोधाभास देख सकते हैं? That he chose a broken vessel कि उसने जो टूटा हुआ बर्तन है उसको चुना to fill something so precious, so treasured, the power of God in that broken vessel. कि उसने इस टूटे हुए बर्तन को और चुना है कुछ बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही असीम सामर्थ के लिए। And this is the mystery of Christian life, that in our weakness God kept some greater purpose in our life. और यही मसीह जीवन का रहस्य है कि परमेश्वर ने जो है एक बड़े उद्देश्य के लिए हमें चुना है। Only the clay jars can experience the power of God in their life. और जो मिट्टी का बर्तन है वही उस प्रभु की सामर्थ को महसूस कर सकता Only है। the clay jars can listen from God that my grace is sufficient for you. और जो वो मिट्टी का बर्तन है केवल वही उस बात को सुन सकता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And because of that, I was wondering that my weakness is essential for God's power to manifest in my life. और मैं सोच रहा था कि मेरी जो कमजोरी है, मेरी जो निर्बलता है वो बहुत जरूरी है प्रभु की सामर्थ को And दिखाने Paul के लिए। says that I really boast in my weakness, that the power of Christ may be manifested in my life. और पौलुस कहता है कि मैं मेरी निर्बलताओं में घमंड करूंगा ताकि प्रभु की सामर्थ मुझ में प्रकट हो सके। We see God uses ordinary man in the Bible.
और हम देखते हैं कि प्रभु जो है साधारण लोगों को बाइबल में इस्तेमाल करता Whether है, fishermen, tax collector, even sinners God used for his purpose. और चाहे कि वो मछुआरे हो, टैक्स कलेक्टर हो, या कोई पाप में डूबे हुए लोग This हो। ordinary men were carrying the power, the life of Christ in their life. और ये जो साधारण लोग थे वही प्रभु की सामर्थ को, उसके जीवन को लेकर चल रहे And थे। I was wondering today, God is looking for those clay jars also to carry his life, his aroma. और प्रभु आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, उन मिट्टी के बर्तनों को जो उसकी सुगंध को लेके चल सके। Those clay jars who are so fragile, who can receive something from God and then pour out in some other's life. और वो जो मिट्टी के बर्तन है, वो लोग जो है प्रभु से कुछ पाकर दूसरों के जीवन में उसे लेके जाते As हैं। we read in 2 Corinthians 2:15, और जैसे कि हमने दूसरा कुरिन्थियों 2:15 में पढ़ा, we are the fragrance of Christ. और हम जो है वो मसीह की सुगंध है। And I was wondering, how can I be a fragrance of Christ around me? और मैं सोच रहा था कि कैसे मेरे आसपास मैं प्रभु की वो सुगंध बन सकता हूँ, How can I have the treasure, that power, the treasure, the life of Christ in me more and more? और कैसे वो जो खजाना है, ये मसीह की सामर्थ्य मुझ में और अधिक हो। You know, last week I had, there's something that I want to be aroma of Christ in my life. और मैं चाहता हूँ कि मुझ में वो मसीह की सुगंध हो। But last week I confess and that I can examine my life. I could not be the aroma of Christ in so many areas. और जब मैं अपने आप को जांच रहा था, मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे क्षेत्रों में मैं मसीह की सुगंध नहीं बन पाया। I had a smell of irritation and anger in my family with my wife. और मेरे पास जो है वो चिड़चिड़ाहट या गुस्से की जो दुर्गंध थी। For some reason, I could not be the same Kiran which is standing today in my family last week. और कुछ कारणों से मैं वो किरण नहीं बन पाया जो शायद आज मैं हूँ। And I was not able to value my wife in some certain areas. और मैं मेरी पत्नी का कुछ क्षेत्रों में वो मूल्य नहीं कर I पा was रहा था। ignoring her. मैं उसको इग्नोर कर रहा था, I was reminding her something she's not able to do. और मैं उसको याद दिला रहा था जो बातें वो नहीं कर पा रही थी। Some weak areas that I was continuously reminding to her. और कुछ ऐसे कमजोर क्षेत्र जो वो नहीं कर पा रही थी। And I was becoming more and more demanding maybe. और मैं और अधिक उससे डिमांड कर रहा And था। completely there was a smell of self-centeredness in my life. और मेरे जीवन में जो है स्व केंद्रित की वो जो दुर्गंध है वो आ रही थी। Even at the workplace, there was a rudeness in me to deal with team members or other people. और मेरे काम की जगह पर भी मेरे जो टीम मेंबर है उनके साथ जो है कठोरता की बातें हो And I रही want to थी। confess, I didn't have the aroma of Christ in my life. और मैं इस बात का अंगीकार करना चाहता हूँ कि मसीह की जो सुगंध है वो मुझ में नहीं थी। And in the mercy of God, God made me realize and I repented of that. और प्रभु ने अपनी दया में मुझे इस बात का एहसास दिलाया और मैंने पश्चाताप किया। God was reminding that you are not that broken jar, Kiran. I'm not able to put my aroma in you. और प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि तुम जो हो वो टूटा हुआ बर्तन नहीं हो। This rudeness, what self-centeredness is like a hindrance for me to put my aroma in you. और ये जो कठोरता है और ये जो स्व केंद्रित है वो एक रुकावट है कि You know- मैं अपनी सामर्थ को या सुगंध को तुम में नहीं डाल सकता। And I realized that God cannot fill me with the aroma of Christ until I become as a broken jar in my life. और मैंने इस बात को जाना कि प्रभु अपनी सुगंध मुझ में तब तक नहीं डाल सकता जब तक कि मैं एक टूटा हुआ बर्तन ना बन जाऊं। God is looking today also those broken jars today who can carry his aroma. और प्रभु आज भी उन टूटे हुए बर्तनों को देख रहा है जो उसकी सुगंध को ले सके। Let's examine our life. What kind of aroma do we bring to others? और आइए हम अपने जीवन को जांचें कि हम दूसरों के लिए किस तरह की सुगंध को लेकर In आते my हैं। family, in my church, in my workplace, what kind of aroma I have? और मेरे परिवार में, मेरी चर्च में, मेरे काम की जगह में किस तरह की सुगंध मुझ में से आती है। We say there are garbage trucks on the road whenever we travel on the road. और हम देखते हैं कि जो कचरा ले जाने वाले ट्रक होते हैं, BMC trucks, whenever they go, I would like to drive something, my car or my bike, from away from that garbage truck. और जब हम वो बीएमसी के कचरे वाले ट्रक देखते हैं और हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उससे दूर रहें। Whenever it is standing on a traffic signal, purposefully I will stand very behind of that because I don't want to smell that garbage truck. और जब अगर ट्रैफिक सिग्नल पे वो खड़ा है तो मैं जानबूझकर थोड़ा पीछे ही खड़ा रहूंगा ताकि उसकी दुर्गंध मुझे ना And आए। that might be case with others also because we avoid that stinking smell of that truck. और बाकी लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे क्योंकि हमें वो दुर्गंध नहीं लेनी है I want to stay away from that. और मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। That was physically I'm avoiding.
और मैं बाहरी रूप से उसको तो दूर रह रहा हूँ। I was realizing what about my inward life, like what smell I'm giving to my life, my wife, at my home. और मैं सोच रहा था कि मेरे भीतरी जीवन से किस तरह की सुगंध मैं मेरे परिवार को या चर्च को दे रहा हूँ। At time I stink with the smell of self-life, rudeness, self-centeredness. और कई बार मुझ में वो स्व केंद्रित या कठोरता की जो दुर्गंध है वो आती And है। without knowing that bad smell of inside of me, I'm carrying everywhere. और बिना जाने मैं वो जो दुर्गंध है वो लेकर हर जगह जाता हूँ। I should be encouragement to my wife and my family, but I'm discouragement to them. और मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चों के लिए प्रोत्साहन बनना चाहिए, पर मैं उनको निरुत्साहित कर देता हूँ। Here I'm feeling that, Lord, what aroma I'm carrying in my life. और मैं सोच रहा था कि प्रभु क्या सुगंध मैं लेकर चल रहा हूँ। And this is where God was inviting me, Kiran, come to me heavy laden, you are hard working, but come to me, I want to give you something. और वहां पर प्रभु मुझे जैसे बुला रहा है कि आओ, तुम बोझ से दबे हुए हो, आओ, मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूँ। An important thing, how can I receive this aroma of Christ in my life? और महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीह की सुगंध को मैं किस तरह मेरे जीवन में स्वीकार कर सकता And हूँ। one of the important ways by which we can have this aroma of Christ is brokenness. और एक जो तरीका जिसके द्वारा हम इस सुगंध को हमारे जीवन में पा सकते हैं वो है टूटापन। God is looking for those broken jars. और प्रभु जो उन टूटे हुए बर्तनों को ढूंढ रहा है। He is not looking for fancy ones, but someone who has a broken spirit. और बहुत ही अच्छे दिखने वाले ऐसे बर्तन नहीं, बट वो जो टूटे हुए, जिनके पास टूटे दिल की आत्मा है। Now, brokenness is a very common word in Christian circle. और जो टूटापन है वो हमारे मसीह समूह में बहुत ही सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला Often शब्द है। believers, Christians, they use that I'm going through a broken phase. I'm passing through some brokenness in my life. और बहुत बार हम विश्वासी ऐसा कहते हैं कि मैं जो हूँ मेरे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति से जा रहा हूँ, बहुत ही टूटेपन से जा रहा हूँ, Some suffering, some pain I'm going through. कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द है। But lately I realized something. पर बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ But suffering and pain that I'm passing through may not be a real brokenness. कि जो तकलीफ और दर्द से मैं जा रहा हूँ वो जरूरी नहीं कि वो सच्ची टूटापन हो। God may use this suffering, pain and trials to bring me to brokenness. और प्रभु जो इस दर्द तकलीफ है उससे मुझे उस टूटेपन की ओर लेके It's जाता है। like a vehicle to bring me to brokenness. और ये मानो एक उस व्हीकल के जैसे, वाहन के जैसे, जो मुझे उस टूटेपन की ओर लेके So जाएगा। because I am suffering, I'm not a broken person. और सिर्फ इसलिए कि मैं तकलीफ में, उसका मतलब ये नहीं कि मैं टूटा हुआ इंसान In हूँ। world also people go through suffering and trials and they also use I'm broken person. और संसार में भी बहुत सारे लोग तकलीफ से जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भी टूटे हुए हैं। This is what God realizing that how I know that I'm a broken person. और प्रभु ने इस बात का मुझे एहसास दिलाया कि मैं कैसे जानूं कि मैं एक टूटा हुआ व्यक्ति हूँ। There are times we go through this trials and sufferings in our life, but we blame God, we blame people around us. और बहुत बार हम तकलीफों से जाते हैं, बट उस समय हम हमारे आसपास के लोगों को या सिर्फ प्रभु पर भी हम दोष लगाते हैं। What is the true brokenness that God wants in my life? और वो सच्चा टूटापन क्या है जो प्रभु मेरे जीवन में होने के लिए चाहता है? What is a God intended brokenness, और a biblical और brokenness? वो जो बाइबल की जो का टूटापन या प्रभु द्वारा ठहराया गया टूटापन है वो क्या है? Is the broken spirit that we have in every circumstances. वो है एक टूटे मन की आत्मा हर एक परिस्थिति में। Real brokenness is total surrender, giving ourselves completely to Heavenly Father. और जो सच्चा टूटापन वो है अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को दे देना, उस पर समर्पण करना। True brokenness is complete, not depending on myself, no confidence on myself, but completely God dependent life. और वो है कि अपने आप पर निर्भर ना रहना, पर पूरी तरीके से परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना, आश्रित रहना। I have no confidence in myself, but I completely rely on Lord. Whatever you will do, I rely on you. और मुझे खुद पर कोई आत्मविश्वास नहीं है, पर मैं विश्वास करता हूँ पूरी तरीके से परमेश्वर पर जो भी वो करता है। Helplessly depending on God, that is the brokenness God wants in our और life. असहाय रूप से पूरी तरीके से परमेश्वर पर ही आश्रित रहना, निर्भर रहना, वही सच्चा Where we टूटापन है। completely empty ourselves before Lord, that this is who I am, Lord, before you. जहाँ हम अपने आप को पूरी तरीके से खाली करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हाँ मैं ये हूँ। So broken people realize the need of God in their life. और जो टूटे हुए लोग हैं उन्हें अपने जीवन में परमेश्वर की जरूरत महसूस होती है। Even they realize the need of other fellow believers in their life. और यहाँ तक उनके भाई बहन आसपास के, उनकी भी जरूरत को वो महसूस करते हैं। Moses was a broken man. और जो मूसा था वो एक टूटा हुआ व्यक्ति In था। such a state he says that Lord, if you don't move further, I will not move ahead. और वो उसके जीवन में इस परिस्थिति में था, अवस्था में था, वो कहता था प्रभु अगर तू आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। Even once he said that Lord, I don't know how to speak even Lord.
और एक बार वो कहता है कि प्रभु मैं तो ये भी नहीं जानता कि किस तरीके से बात He करूं। was completely dependent on God for the direction of his life and for the guidance of his life. और वो अपने जीवन की हर एक प्रभु आगे बढ़ने के लिए, डायरेक्शन के लिए, सबके लिए प्रभु पर निर्भर था। This is what God wants in brokenness, that we completely rely, depend on him alone. और यही टूटापन प्रभु हमें चाहता है कि हम पूरी तरीके से उस पर विश्वास करें और उस पर निर्भर रहें। And such dependency in the worldly way might be looked as weakness. और सांसारिक रूप से अगर इस तरह की निर्भरता को देखें तो वो लगेगा कि ये तो कमजोरी है। But the more we lean and more we depend on God, the stronger we will be. पर जितना अधिक हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं उतना अधिक हम सामर्थी होंगे। So what I see, the brokenness, biblical brokenness is not a one-time event. और मैं देखता हूँ कि जो ये बाइबल का जो टूटापन है वो सिर्फ एक बार होने वाली घटना नहीं है। It's a daily choice that I do. और ये जो है रोज जो चुनाव मैं करता हूँ वो है। It's not just something I experience, the pain I experience that way, but those suffering and difficulties, I choose to give myself to God. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ परेशानियां होती है तभी मैं प्रभु को अपने आप को समर्पित करता हूँ। But true brokenness is a perpetual way of life. और जो सही टूटापन है वो निरंतर रहने वाली जीवन की बात है। So what I learn here, it's not through difficulties only I can be broken, but in good times also we can have a spirit of brokenness. और मैंने सीखा कि केवल कठिन समय में ही वो टूटापन नहीं आता, पर जब परिस्थितियां अच्छी हैं तभी मेरे अंदर वो टूटेपन की आत्मा हो सकती है। Psalms 51:17 we read like this. और भजन संहिता 51:17 में हम इस तरह The पढ़ते हैं, sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, God you will not despise. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं Let's जानता। have a desire to Lord, give me a broken spirit, completely looking unto you, Lord. और प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे ऐसा हृदय, टूटा हुआ हृदय दे कि मैं हमेशा तेरी ओर ही देखूं। Because those clay jars can only contain the aroma of Christ. क्योंकि वो जो मिट्टी के बर्तन है केवल वही मसीह की सुगंध को ले सकते हैं। The way of cross is the way of brokenness. और जो उस क्रूस का जो रास्ता है वही उस टूटेपन का रास्ता है। God is calling me and all of us to daily die to ourselves and to receive that aroma of Christ in our और life. प्रभु चाहता है कि हम निरंतर अपने आप के लिए मरे और उस मसीह की सुगंध को हम प्राप्त कर सके। God is allowing so many circumstances to bring us to that broken spirit in our life. और प्रभु बहुत सारी परिस्थितियों की अनुमति देता है ताकि हम उस टूटेपन में आ सके। Let's turn to Hosea chapter 10 verse 12. और होशे 10:12 हम पढ़ेंगे। You see that in the middle of that verse, that reap in accordance with kindness, break up your hard ground. For at times to seek the Lord, He comes to rain righteousness on you. और उस वचन में लिखा है, अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जो तो देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। The word says, middle of that verse, that break up the hard ground. और उसमें लिखा है जो कठोर भूमि है उसे तोड़ने का समय है। Unless and until we break that hard ground, we cannot do anything. It's useless for God. और जब तक वो जो कठोर भूमि है हम उसे नहीं तोड़ेंगे तब तक वो प्रभु के लिए कुछ भी उसका मूल्य नहीं है, योग्य नहीं है। God wants to break our self-will, jealousy, stubbornness, anything which is hard heart in our life. और प्रभु जो हमारे हृदय में स्वयं की जो कठोरता है, अपनी इच्छा करने की जो चीजें हैं, उनको प्रभु तोड़ना चाहता Especially है। He wants to break the ground of pride in our life, especially. और खासकर जो घमंड की जो भूमि है उसको प्रभु तोड़ना And चाहता He है। wants us to have a true repentance in our life. और प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप हो। I realize one thing, that it is very easy for God to do a miracle. और मैंने इस बात को जाना कि प्रभु के लिए चमत्कार करना बहुत ही आसान I है। would repeat that it's very easy for God to do any miracle. और मैं फिर कहना चाहूंगा कि प्रभु के लिए कोई भी चमत्कार करना बहुत आसान है। But there are times it takes years for God to break me. पर बहुत साल कई बार लग जाते हैं प्रभु को हमें तोड़ने के लिए। In one, and I think in so less moment, God could able to depart the Red Sea. और बहुत ही कम क्षण में प्रभु जो है उस लाल समुद्र को दो भाग कर सका। But for 40 years He took to break Moses. पर 40 वर्ष लगे मूसा को तोड़ने के लिए। This is what my story, that how many years, times goes by, circumstances goes by to break the hard ground of my heart. और मेरी क्या कहानी है कि कितने साल और लगेंगे मेरे उस कठोर हृदय को तोड़ने के लिए। And hence I'm not able to receive the fragrance of Christ in my life.
और उसकी वजह से ही वो मसीह की सुगंध में मेरे जीवन में नहीं प्राप्त कर Let's पाता हूँ। surrender all the broken areas of our life that we may receive the aroma of Christ in our life. और आइए कि उन सारे टूटेपन को हम प्रभु के सामने रखें ताकि मसीह की सुगंध को हम प्राप्त We कर all may सकें। be going some broken circumstances at different areas. और हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में उस टूटेपन के परिस्थितियों से हम होकर जा रहे Often हो। we might have tears for our loved ones, for our children. और बहुत बार हमारे आंखों में आंसू होते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्रिय लोगों के लिए। Maybe a joblessness. In many areas we are struggling maybe. और बहुत सारे क्षेत्रों में हम संघर्ष कर रहे हैं, शायद कोई जॉब नहीं है Many things are not working as we intend, we plan to do. और जैसे हमने सोचा था वैसे चीजें नहीं हो रही We हैं। are praying for something, it's not working for us. और हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पर वो नहीं हो रहा है No change in circumstances in our और life. परिस्थितियों में कुछ भी बदलाव नहीं है Problems in office and in around everywhere. और हमारे ऑफिस में और हर जगह परेशानियां हैं। You know, God is looking for those broken jars today. और प्रभु जो आज है उन टूटे बर्तनों को ढूंढ रहा है। You know, God is allowing these circumstances to break us, people around us to break us. और प्रभु जो है आसपास के लोगों को परिस्थितियों के द्वारा हमको तोड़ना चाहता है। Let's realize and recognize the hard ground of in our heart. और आइए हम जाने हमारे जीवन में वो कठोर भूमि कौन सी है। God cannot use any jars unless and until it's broken. और प्रभु उस बर्तन को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वो टूटा हुआ ना हो। You know, if you are going through any broken circumstances in our life, brokenness, और अगर हमारे जीवन में किस टूटे हुएपन की अवस्था से परिस्थिति से अगर हम होके जा रहे हैं God is preparing those clay jars to put His life and aroma in us. तो प्रभु जो है उन बर्तनों को वो बना रहा है जहां पर प्रभु अपनी सुगंध को डाल सके। You know, He is putting that brokenness that we can be more and more like Jesus in our life. और वो उस टूटेपन को हमारे जीवन में ला रहा है ताकि हम और अधिक प्रभु के समान हो सके। We read that, you know, Jesus broke the bread and He fed 5,000 people. और हम जानते हैं कि प्रभु ने उस रोटी को तोड़ा और 5,000 को खिलाया। You know, when we are broken, the power of God is released through our life. और जब हम टूटे होते हैं तब प्रभु की सामर्थ हमारे द्वारा निकलती है। In Mark 14:3, we read one woman there who came to Jesus. और मरकुस 14:3 में हम पढ़ते हैं We can read that she broke the jar of perfume over his head. और उसने जो है वो जो इत्र का जो बॉटल था उसको तोड़ा। You know, he broke. She brought something precious and she broke at Jesus. जो ये वह स्त्री थी जो वो बहुत ही कुछ बहुमूल्य लेकर आई और उसे यीशु मसीह के चरणों में उसने तोड़ा। People really couldn't understand what she's doing. और लोग नहीं समझ पाए कि वो क्या कर रही है। In people's perspective, it was waste of money, waste of resource. और लोगों के दृष्टिकोण से तो वो तो पैसों की बर्बादी थी। Hannah was crying and the priest couldn't understand her. और हन्ना जो रो रही थी और वो जो याजक था वो नहीं समझ Maybe पाया। our brokenness people won't able to understand. और हमारा जो टूटापन है लोग उसे नहीं समझ But पाएंगे। Jesus allowed that she broke that perfume and the aroma of that perfume filled the room. और प्रभु ने इस बात की अनुमति दी कि वह जो स्त्री है उस इत्र की बोतल को तोड़े और उसके सुगंध से वो पूरा कमरा भर गया। And it is always better that we bring brokenness not to any human being but to God alone. और बहुत जरूरी है कि उस टूटे हुए पन को हम लोगों के पास नहीं पर परमेश्वर के पास लेकर जाएं। You know, God wants to fulfill His best plan and purpose, dear brothers and sisters, in our life. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु जो है हमारे जीवन में अपने उत्तम जो उसकी योजनाएं उनको पूरा करना But चाहता है। He cannot use anyone who is not broken in their life. और प्रभु किसी ऐसे व्यक्ति को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो टूटा हुआ नहीं है। Jesus Himself in Isaiah 53, we read, He was crushed, He was broken man. और हम यशाया 53 में पढ़ते हैं कि खुद यीशु मसीह कुचला गया, वो टूटा हुआ He व्यक्ति was था rejected by people, despised by people. और लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसका इनकार किया, But always He did Heavenly Father's will. पर उसने हमेशा स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा He किया। was broken man and He is calling us to be His image. और वो टूटा हुआ व्यक्ति है और वो हमें उसके समान होने के लिए बुलाता है। You know, this true, the hard ground we can broke by the true repentance in our life. और जो कठोर हृदय या भूमि हमारे जीवन में है उसे हम पश्चाताप के द्वारा तोड़ सकते And हैं। every area we can come to the complete dependence on Christ. और हर एक क्षेत्र में हम पूरी निर्भरता के साथ प्रभु के सामने आए। Today, brothers and sisters, God is looking for those clay jars, those broken jars to come to Lord. और प्रभु आज ऐसे टूटे हुए बर्तनों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के पास आए। And He is looking that, my dear and brothers, I'm waiting that, you know, you come to that brokenness, then I can fill my jar, you know, my aroma in your life. और प्रभु इंतजार कर रहा है कि तुम उस टूटी हुई अवस्था में आओ ताकि मैं अपनी सुगंध तुम्हारे भीतर डाल सकूं। I read this story once. और मैंने कहानी को पढ़ा
Once the master was searching for vessel to use, और एक बार जो स्वामी है वो एक बर्तन को ढूंढ रहा था जिसका वो इस्तेमाल कर सके। and he went there, and there in the on the shelf there were different kinds of vessels were there. और जो शेल्फ था उसमें अलग अलग तरह के बर्तन थे। Master started thinking which vessel I should pick up, और वो सोच रहा था कि इसमें से किस बर्तन को मैं चुनूं। and there was a gold vessel there, और वहां पर एक सोने का बर्तन था। and the vessel said, take me master, I'm very bright, I'm very shining, I'm very valuable. और वो सोने का बर्तन है वो कहते हैं कि तुम मुझे ले लो, देखो मैं तो बहुत कीमती हूँ और बहुत ही चमकदार हूँ And I have a great value. और मेरी बहुत कीमत है। If you use me master, I can impress others. अगर आप मेरा इस्तेमाल करोगे तो मैं दूसरों को भी इम्प्रेस कर सकता I हूँ। have a pure beauty because I am a gold. और मेरे अंदर तो बहुत खूबसूरती है क्योंकि मैं तो शुद्ध सोने का हूँ No one is like me master. और मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। I will do my best for you. और मैं मेरा उत्तम तुम्हारे लिए And the करूँगा। master passed by. और जो स्वामी है वो आगे निकल जाता है, He goes further. वो आगे जाता है। There was a silver vessel. और जो चांदी का बर्तन होता है He said to master, और वो अपने स्वामी से कहता है कि स्वामी, I'm a narrow, I'm a tall, I will serve you, my dear master. और मैं सकरा हूँ और मैं बहुत लंबा हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा। I can pour out very nicely the drink that you drink. और मैं बहुत अच्छे से उसमें जो भी आप पियेंगे शरबत उसको उसमें डालूंगा। I can be very good asset on your table. और मैं बहुत ही अच्छा जो है संपत्ति या एसेट बन सकता हूँ आपकी उस टेबल पर। I have a very good cravings upon me, silver cravings. और मेरे जो ऊपर जो है बहुत अच्छी नकाशी है I can look very graceful to you. और मैं बहुत ही अच्छा दिखूंगा। And silver also always shines on the table. और जो है चांदी का जो बर्तन है वो हमेशा चमकता रहेगा। And the master again passed by. और वो जो स्वामी वो फिर आगे निकल जाता Then है। there was a vessel of brass. और फिर जो है पीतल का बर्तन वहां पर होता And है। that said that I have a very wide mouth and I'm a polished vessel. और देखो मेरा तो मुंह कितना चौड़ा है इस बर्तन का और जो एकदम अच्छे से पॉलिश हूँ। Please take me. I will serve you with pride. और मुझे ले लीजिए और मैं घमंड के साथ आपकी सेवा करूंगा। A lot of benefits of using me, master. और मुझे इस्तेमाल करने के बहुत से फायदे हैं। Master again passed by. और फिर वो जो स्वामी है वो फिर आगे बढ़ जाता है। And master looked down at one vessel there. और फिर वो स्वामी नीचे देखता है और एक बर्तन वहां पर है There was a vessel of clay. और एक मिट्टी का वहां पर बर्तन है It was empty and broken. और वो जो है खाली और टूटा हुआ है It was lying helplessly there. और वो असहाय रूप से मानो वहां पर पड़ा हुआ है। There was no hope for that vessel that master might come near him and choose him. और उस बर्तन के लिए कोई आशा नहीं थी कि जो स्वामी है वो आएगा और उसको चुनेगा। This clay jar was completely looking down and even not looking to the master. और वो जो बर्तन है वो नीचे की तरफ देख रहा था, वो स्वामी की तरफ भी नहीं देख And पा रहा था। it was not like that gold or silver or brass. और वो जो चांदी सोना या पीतल के बर्तन के जैसा नहीं This है। clay jar doesn't have any trophies, no achievement in his life. और ये जो बर्तन है उसके जीवन में कोई सफलता या कुछ ट्रॉफी दिखाने के लिए नहीं है। It doesn't have anything to compare with anyone. और उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो दूसरों से अपनी तुलना कर सके। And he is hopelessly looking at its own brokenness. और वो असहाय रूप से अपनी खुद की टूटी व्यवस्था को ही देख रहा है। He is not expecting even that someone will ever choose me, a vessel like clay. और वो ये भी आशा नहीं रखता कि कोई मुझ जैसे मिट्टी के टूटे हुए बर्तन को चुनेगा भी। And master looked at this clay jar with compassion. और जो स्वामी है वो बड़े ही तरस के साथ उस बर्तन की तरफ And देखता he है lovingly said to this clay jar, और वे बड़े प्रेम से उस बर्तन से कहता है, this is the vessel I'm looking for. और ये वो बर्तन है जिसको मैं खोज रहा हूँ। I will repair this, I will refine this, और मैं इसकी मरम्मत करूंगा और इसको बहुत ही अच्छा बना दूंगा। I will cleanse it thoroughly and I'll use it. और मैं इसको पूरी तरीके से साफ करूंगा और अपने लिए इस्तेमाल I करूंगा। will fill it, I will make it whole. और मैं इसको पूरी तरीके से भर दूंगा। I will remake it. मैं इसको फिर से बनाऊंगा। I don't need, master was saying, I don't need vessel of pride. और जो स्वामी वो कहते हैं मुझे घमंड के बर्तन की जरूरत नहीं। I don't need vessel of accomplishment, self-seeking. और मुझे ऐसे बर्तन की जरूरत नहीं जिसने कुछ किया हो या जो खुद अपने आप को ढूंढता है। Even I don't need vessels of perfection. और मुझे ऐसे बर्तन की भी जरूरत नहीं जो सिद्ध है। But I'm looking for a vessel of clay पर मैं जो है मिट्टी के उस बर्तन को ढूंढता हूँ who is broken and who is weak, जो टूटा हुआ है और कमजोर है who cannot boast in anything of himself except his master. और जो किसी भी बात पर घमंड नहीं कर सकता केवल अपने स्वामी पर। A vessel whom I can fill
with my own power and my life. और ऐसा बर्तन जिसे मैं मेरी सामर्थ्य और मेरे स्वयं के जीवन से भर A सकूं। vessel which I am looking, which I can call, this is my treasure, my very own vessel. और मैं इसे कह सकूं कि ये जो बर्तन ये मेरा है और इसमें मेरा खजाना मैं भरूंगा। God's master wants to choose that vessel of clay. और जो स्वामी है वो ऐसा मिट्टी का बर्तन चुनना चाहता And है। he lovingly said to that clay jar, broken clay jar, और वो बड़े ही प्रेम से उस मिट्टी के बर्तन से कहता है, there is a work you must do. और एक काम है जो तुम्हें जरूर करना है, Just pour out to others as I pour out into you. और जो मैं तुम्हारे भीतर डालता हूँ वो तुम दूसरों के भीतर भी डालो। Dear brothers and sisters, our heavenly Father is looking for such clay jars. और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर पिता ऐसे मिट्टी के बर्तनों को ढूंढ रहा A है, man and woman with a broken spirit in their life. और ऐसी ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष जिसके हृदय में वो टूटा हुआ आत्मा है। We read in 2 Corinthians that he wants to give us the fragrance of Christ in our life. और हमने दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा कि वो मसीह की सुगंध हमें देना चाहता है। Do we have that broken jar, that clay jar in our heart before God? पर क्या हमारे पास वो टूटा हुआ बर्तन या हृदय है? He wants to pour out his own life, his own attitude in us. और वो हमारे भीतर उसका जीवन, उसका स्वभाव डालना चाहता A है, life which is pleasing to Christ and a blessing for my fellow brothers and और sisters. ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाता है और हमारे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण है। Through circumstances, we might be thinking, Lord, I'm a weak person, I'm a broken, I'm a hopeless, Lord. और हो सकता है हमारी परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि प्रभु, हम मेरे लिए तो कोई आशा नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से असहाय We हूँ। might be looking to our own, delayed waiting periods and hopelessness. Lord, is there any hope in my life? और हम सोचते होंगे कि कितना हमारे जीवन में बातों के लिए देर हो रही है और कितनी ही निराशा और असहायता हमारे जीवन में But है। the master comes to you and says, I need you, my daughter, I need you, my son. पर वो जो स्वामी है वो हमारे पास आता है और कहता है कि मेरी प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। Are we tired, completely stinking smell of self, like falling in sin repeatedly? क्या हम सच में थक चुके हैं बार बार उस पाप में गिरने के द्वारा, हमारे जीवन से उस दुर्गंध आने के द्वारा? Is there a smell of anger? There is a smell of, a self-life in our life? क्या हमारे भीतर से उस गुस्से की या उस स्वयं के जीवन की दुर्गंध आ रही There है? is a jealousy, there is a unforgiveness, there is a discouragement in my life. और वो जो जलन है और ना माफ करना या फिर निराशा की बातें हमारे जीवन में है? God is calling us, bring your brokenness to me. और प्रभु कहता है कि उस टूटेपन को मेरे पास लेकर आओ। A contrite spirit God wants to give us today. और वो टूटा हुआ जो आत्मा है प्रभु वो चाहता है। People might despise, but not our heavenly Father. और लोग हमें तुच्छ जान सकते हैं पर हमारा स्वर्गीय पिता नहीं। Lord, I want to come to you. I want to repent from all the hard heart, the ground that I have. प्रभु, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और जो भी कठोर हृदय मेरे जीवन में रहा उसके लिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। Every opportunity, God, you have allowed in my life, Lord, I want to be that broken jar in my life. और हर एक जो अवसर प्रभु आप मेरे जीवन में देते हैं उस मौकों में मैं वो टूटा हुआ बर्तन बनना I चाहता हूँ। want to contain the power of God, the treasure of God, the aroma in my life. और मेरे जीवन में वो प्रभु के जो सुगंध है, प्रभु का वो जो खजाना है, उसको मैं रखना चाहता हूँ। Every darkest valley, Lord, you allow in my life, I want to only depend on you, Lord. और हर एक अंधकार की वो जो वादियां प्रभु मेरे जीवन में है, वहां पर मैं प्रभु पूरी रीति से आप पर निर्भर रहना Lord, चाहता I हूँ। want to fulfill all the purpose that you have for my life, और Lord. प्रभु जो कुछ भी आपके उद्देश्य मेरे जीवन के लिए मैं उन्हें पूरा करना चाहता Make हूँ। me more like Jesus in my life, और Lord. मुझे और अधिक प्रभु यीशु के समान बना, A useful vessel for my master. और मेरे प्रभु के लिए एक योग्य बर्तन। I want to always remain in the spirit of brokenness, और मैं हमेशा उस टूटेपन की आत्मा में रहना चाहता हूँ, helplessly depending on you. असहाय रूप से आप पर निर्भर I रहना। want to be that clay jar which master can only use. और वो बर्तन जिसे वो स्वामी इस्तेमाल कर सके। Repair me, Lord. I want to repent, Lord. प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु आप मेरी मरम्मत करें। Fill me with your Holy Spirit. I need it, Lord. प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मुझे इसकी जरूरत है। Make me a blessing and encouragement to others, Lord. और मुझे दूसरों के लिए आशीष और दूसरों को प्रोत्साहित करने Fill वाला me with बनाए। your power, Lord, और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरे, that I can be an aroma of Christ through brokenness. और ताकि उस टूटेपन के द्वारा मैं मसीह की वो सुगंध को बन पाऊं। Yes, brothers and sisters, this is the way और मेरे प्रिय भाई बहनों, यही वो रास्ता है। we can receive the aroma of Christ through the brokenness. और मसीह की उस सुगंध को हम केवल उस टूटेपन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते May हैं। Lord help us. और प्रभु हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।